Hello students, let us solve the question of permutation and combination. The first question is the number of positive terms in the sequence xn is equal to 96 upon pn minus pn plus 3 comma n comma 3 upon pn plus 1 where n belongs to natural number r where pn is a number of permutations considering all objects. So here what is given, Pn is number of permutation considering all objects. So basically Pn हो गया n factorial. तो basically तो Pn वो Pn एक्चुअली है P of n comma n, करेक्ट. अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, P of n plus 1 भी है, तो Pn plus 1 हो जाएगा n plus 1 factorial एंड P of n plus 3 comma 3 है. सो ये हो जाएगा n plus 3 P3. सो ये हो जाएगा n plus 3 factorial अपॉन n plus 3 minus 3. ये हो जाएगा n factorial. ओके, तो इतना इंफॉर्मेशन अपने को मिल गया. नाउ वी वांट द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. ओके, सो xn, ठीक है. सो बेसिकली वी वांट xn इज पॉजिटिव. So 96 upon Pn minus Pn plus 3 comma 3 upon Pn plus 1 we want positive. Okay, so 96 upon, in place of Pn we can write n factorial is greater than Pn plus 3 comma 3 की जगह पे I can write n plus 3 factorial upon n factorial and Pn plus 1 is n plus 1 factorial. Okay, so this and this will get cancelled. Here 96 is greater than, now n plus 3 factorial I can write n plus 3 n plus 2 n plus 1. इधर stop करना है, factorial डाल के stop कर सकते हो, upon n plus 1 factorial. This and this will get cancelled. Basically 96 is greater than n plus 3 into n plus 2, correct. Now how many values are there which satisfies this? वो इधर क्या बोला है, n belongs to natural number. Okay, so suppose here put n is equal to 1. So right hand side is 4 into 3, that is 12. So 96 is greater than 10, satisfying. Put n is equal to 2. So right hand side क्या बन रहा है, 5 into 4, that is 20, again satisfying. Put n is equal to 3. क्या बन रहा है right hand side, 3 plus 3 6 and 5 30, yes it is satisfying. Then put n is equal to 4. क्या बन रहा है अपना right hand side, 7 into 6 42, yes satisfying. Put n is equal to 5. क्या बन रहा है राइट हैंड साइड, इसमें सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं, 8 into 7, तो ये बन रहा है 56, सेटिस्फाइंग. पुट n is equal to 6. क्या हो रहा है राइट हैंड साइड, 9 into 8 72, yes सेटिस्फाइंग. सो ऐसे चेक करना पड़ेगा. पुट n is equal to 7. सो माई राइट हैंड साइड इज 10 into 9 90, yes satisfying. Put n is equal to 8, तो राइट हैंड साइड हो गया 11 into 10 110, yes this is not satisfying. So it means कौन सा तक वैल्यू तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है, करेक्ट. So here my answer is n is equal to 7. Yes, that is our option number 3. Yes, next question. 10 different letters are given. Words with 5 letters are formed from these given letters. Then the number of words which have at least one letter repeated. Okay. So 10 different letters are given. Let us say A, B, C से लेके there are 10 different letters. Okay. Now from those 10 different letters we have to form a कितना letter word, 5 letter word, 1 2 3 4 and 5. okay, अभी कंडीशन क्या दिया उन लोगों ने, then number of words which have at least one letter repeated. now in permutation and combination at least one word आया तो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. अगर मैं बोलूँ कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए मेरे को आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 35 मार्क्स चाहिए, मतलब 35 आया तो चलेगा, 36 आया तो अच्छा है, मतलब ज़्यादा आया तो अच्छा ही है, कोई गलत नहीं है उसमें, बट कम नहीं आना चाहिए. तो इसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड, मतलब एटलीस्ट एक लेटर तो रिपीट होना ही चाहिए.
तो एटलीस्ट एक होगा तो चलेगा, दो होगा तो भी चलेगा, तीन होगा तो भी चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है। तो मैं इधर बाइजेक्शन मेथड यूज करता हूँ। बाइजेक्शन मतलब फर्स्ट आई विल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, उसमें से मैं वो पॉसिबिलिटी सब्ट्रैक्ट करूंगा जो मेरे को नहीं चाहिए। अब इधर क्या बोला है कि एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड, मतलब कौन सा केस नहीं चाहिए? वो केस नहीं चाहिए जिसमें पांचों के पांचों लेटर डिफरेंट हो। ठीक है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालूंगा, उसमें से वो वर्ड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिसमें पांचों अल्फाबेट डिफरेंट है। ओके, सो टू फिल फर्स्ट place there are 10 letters, so to fill first place there are 10 possibilities. Now again to fill second place there are 10 possibilities, to fill third place there are 10 possibilities, 10 possibilities and 10 possibilities. Okay, so total number of, मैं लिखता हूँ 5 letter words, 5 letter words with no restriction कितना बनेगा? विल बी 10⁵। 10⁵ मतलब 1,00,000 वर्ड्स बनेगा। ठीक है, नाउ अभी मेरे को चाहिए दोज वर्ड्स इन विच ऑल 5 लेटर्स आर डिफरेंट। ओके, सो नाउ वी वांट दोज वर्ड्स इन विच ऑल 5 लेटर्स आर डिफरेंट। ठीक है, सो टू फिल फर्स्ट प्लेस हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आई हैव? डेफिनेटली 10 पॉसिबिलिटी। नाउ टू फिल सेकेंड प्लेस नाउ आई हैव 9 पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि मेरे को हर एक वर्ड डिफरेंट, हर एक लेटर डिफरेंट चाहिए। करेक्ट, तो जो लेटर फर्स्ट पोजीशन पे आया होगा डेफिनेटली वो मैं काउंट नहीं करूंगा, आई कांट यूज दैट लेटर। सिमिलरली टू फिल थर्ड पोजीशन आई हैव 8 पॉसिबिलिटी, to fill fourth position I have 7 possibility, to fill fifth position I have 6 possibility. करेक्ट, सो इसमें कितना हो गया? 10 इंटू 9 इंटू 8। अच्छा, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर कितना आएगा? 72 इंटू 420। सो इधर मैं 72 इंटू 42 करता हूँ, तो ये 4, ये 14, ये 0, 8 एंड 28। तो ये कितना आएगा? इधर आएगा 0 तो है इधर, देन 4, 2, 0 एंड यस 30,000 एंड 240। इतना 30,000 एंड 240 इतना वर्ड्स है, 5 लेटर वर्ड्स जिसमें ऑल 5 लेटर्स आर डिफरेंट। नाउ वी वांट दोज वर्ड्स इन विच एटलीस्ट वन लेटर इज रिपीटेड, सो विच इज इक्वल टू टोटल, मतलब 1,00,000 जो है उसमें से 30240 सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 1,00,000 1 2 3 4 5 उसमें से 30240 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 69,360 है ऐसा कोई? इधर 6, हाँ इधर 7 होगा, सर गलती हो गई, इधर आएगा 7। सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा इधर? 69,760 या 69,760 यहाँ है अपने पास फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 12। अच्छा, ओके, तो उसके पहले ये सम सॉल्व करने से पहले एक छोटा एग्जांपल देखते। सपोज मैं बोलूँ कि व्हेन 43 फाइंड रिमाइंडर, व्हेन 43 इज फाइंड रिमाइंडर व्हेन 43 इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर मैं 43 को 5 से डिवाइड करूँ, सो 5 8 जा 40, मतलब 3 रिमाइंडर बचता है। करेक्ट, सो बेसिकली मेरे को 43 डिवाइडेड बाई 5 चाहिए, तो मैं उसको ऐसे लिखूँगा 3 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 3 प्लस, अब ये 40 को मैं लिखता हूँ मल्टीपल ऑफ 4,
मल्टीपल ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ऐसा लिखने से इधर जो नंबर बच गया वो मेरा रिमाइंडर होगा, करेक्ट। सो इधर क्या बोला है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 12, ठीक है। नाउ 12 तो हो गया 3 इंटू 4, ओके। सो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस, अच्छा अभी 3 इंटू 4 मतलब 4 फैक्टोरियल के आगे जो भी नंबर का फैक्टोरियल है वो हर एक नंबर में 3 इंटू 4 तो होगा ही होगा। जैसे 4 फैक्टोरियल है, सो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। प्लस आगे 5 फैक्टोरियल होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो 100 फैक्टोरियल तक जाएगा डिवाइडेड बाई 12। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 प्लस 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 3 फैक्टोरियल इज 6 प्लस, हाँ ये जो इधर से बन रहा है इधर से ये, सो ये हर एक में हर एक डिजिट में 12 तो है ही है, मतलब ऑल आर मल्टीपल ऑफ 12, करेक्ट। सो मैं कॉमन 12 लूँगा तो अंदर मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 12। तो बचा क्या है, बचा ये है, मतलब ये जो रेड बॉक्स दिख रहा है वो अपना रिमाइंडर है। सो रिमाइंडर विल बी 1 प्लस 2 प्लस 6 कितना होता है, 9 होना चाहिए ऑप्शन में, यस 9 इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इन विच 4 particular objects never come together, 4 particular objects never come together, ठीक है। नाउ चारों ऑब्जेक्ट साथ में नहीं आना चाहिए, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी 3 ऑब्जेक्ट भी अपने को, चारों ऑब्जेक्ट साथ में नहीं आना चाहिए, मतलब 3 ऑब्जेक्ट साथ में आया तो चलेगा, 2 ऑब्जेक्ट साथ में आया तो चलेगा, ठीक है। चारों ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो वो इससे अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, ABCDEFGHINJ, ठीक है, हो गया 10 ऑब्जेक्ट, 5 और 5 10। उसमें से 4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो 4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते, सपोज ABCD, ये साथ में नहीं आना चाहिए। तो अभी ये साथ में नहीं आना चाहिए वाला कंडीशन भूल जाओ। सबसे पहले तो हाउ मेनी टोटल पॉसिबिलिटीज आर देयर बाय विच वी कैन अरेंज दीज 10 अल्फाबेट्स। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 अल्फाबेट्स है तो डेफिनेटली 10 प्लेसेस होगा। तो फर्स्ट ए को बैठने के लिए वो 10 में से कोई भी एक जगह पे बैठ सकता है, बी को बैठना है तो अभी उसके पास 9 पोजीशन है, तो 9 में से कोई भी एक प्लेस पे बैठ सकता है। सिमिलरली 8 7 6 एंड में जो जे के लिए एक जो सीट खाली होगा उसमें जाकर वो बैठ जाएगा। ओके, सो 10 फैक्टोरियल। अभी ये 10 फैक्टोरियल जो है ना, उसमें कितना कितना केसेस है कि ABCD ये जो है ये ऑल टुगेदर है। फिर ऐसा हो सकता है कि 3 लेटर्स टुगेदर एंड 1 लेटर इज, आई मीन एंड 1 लेटर जो है वो किधर भी इनके साथ नहीं है, इसमें से कोई भी 3 साथ में। ऐसा भी हो सकता है कि 2 लेटर्स टुगेदर, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, इन विच 4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नेवर कम टुगेदर, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑल आर नॉट प्लेस्ड टुगेदर। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि no 2 letters are together, no 2 letters are together, मतलब कोई भी साथ में नहीं है, सब एक दूसरे से अलग बिछड़ गए। तो
अपने को क्या चाहिए, 4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नेवर कम टुगेदर, तो अपने को साथ में नहीं आना चाहिए, साथ में नहीं आना चाहिए, तो अपने को ये सब चाहिए, ये सब केसेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि पहले टोटल में से ऑल टुगेदर का पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करूँगा और फिर टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो बचा है वो डेफिनेटली ये 3 केसेस होगा। तो अभी नाउ कैलकुलेट A B C D R टुगेदर, ठीक है, टुगेदर है तो उसको बांध के हम लोग एक सेट अज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज वन सेट, देन E F G H I N J, तो कितना सेट हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, देर आर 7 डिफरेंट सेट्स एंड वी हैव टू अरेंज दो 7 सेट्स इनटू, अभी 7 सीट्स हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा सेट है वो जिधर भी जाएगा तो एक साथ 4 सीट ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि चारों के चारों एक ही सीट पे जाके बैठ जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जिधर भी जाएगा वो एक साथ 4 सीट ऑक्यूपाई करेगा। तो अपने लिए एक अज्यूम करो कि सीट भी बड़ा है जिसमें 4 लोग बैठ सके। तो देर आर 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव 7 सीट्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल वेज इनटू, नाउ दीज 4 पीपल जो साथ में है ABCD, वो अंदर अंदर इंट्रा परम्यूटेशन अंदर अंदर कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वे से। सो ये किसका पॉसिबिलिटी है, ऑल आर टुगेदर, बट व्हाट वी वांट, ऑब्जेक्ट्स नेवर कम टुगेदर, सो रिक्वायर्ड वेज will be 10 factorial minus 7 factorial into 4 factorial. These many ways are there in which कि सब एक साथ में नहीं होंगे, है ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ, 4th ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्नल्स विच कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स बाय 5 डिफरेंट कलर्स इज, ठीक है। अभी इधर 4 कलर है, तो हम लोग 4 कलर को, सपोज एक रेड कलर है, फिर एक ब्लू कलर है, फिर एक ग्रीन कलर है, ठीक है, फिर एक चलो ऑरेंज कलर ले लेते और फिर एक ब्लैक कलर ले लेते, ठीक है। ये 5 डिफरेंट सिग्नल है। तो 5 द नंबर ऑफ सिग्नल्स विच कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग, फ्लैग मतलब झंडा नहीं होता, फ्लैग मतलब कोई भी एक लाइट, ठीक है। हम लोग ने ट्रैफिक सिग्नल पे देखा होगा कि सिग्नल के ऊपर अलग अलग लाइट होता है, तो जो लाइट होता है उसको फ्लैग बोलते हैं। बाय 5 डिफरेंट लेटर्स इज, अभी एक लाइट चालू होगा तो भी सिग्नल जनरेट होता है, 2 लाइट चालू होता है तो भी सिग्नल जनरेट होता है, 3 लाइट चालू होता है तो भी सिग्नल जनरेट होता है, 4 लाइट चालू होता है तो भी सिग्नल जनरेट होता है, 5 का 5 लाइट चालू होता है तो भी सिग्नल जनरेट होता है, कुछ तो सिग्नल जनरेट होता ही है। ओके, सो to generate a signal, या तो एक लाइट ऑन होगा तो भी चलेगा, या तो और 2 लाइट ऑन होगा तो भी चलेगा, या तो 3 लाइट ऑन होगा तो भी चलेगा, या तो 4 लाइट ऑन होगा तो भी चलेगा, या तो 5 के 5 लाइट ऑन होगा तो भी चलेगा। तो सबसे पहले एक लाइट ऑन हुआ है, तो एक लाइट ऑन हुआ है ना, तो कौन सा लाइट ऑन हुआ है, तो पहले अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो वी आर सिलेक्टिंग 5C1 वे, करेक्ट। तो एक लाइट तो ऑन हो गया। नाउ और मतलब प्लस, अभी 2 लाइट सिलेक्ट करना है, तो कितने में से, 5 लाइट में से, तो आई विल सिलेक्ट 2 लाइट्स। नाउ अभी ये जो 2 लाइट है वो कितने वे से अरेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकता है। मतलब ये जो है ना वो सिलेक्शन है और ये जो है ना वो अरेंजमेंट है। मतलब सपोज अज्यूम करो कि रेड एंड ब्लू लाइट सिलेक्ट हो गया, तो रेड एंड ब्लू का अलग सिग्नल जनरेट होगा एंड ब्लू एंड रेड का अलग सिग्नल जनरेट होगा। मतलब 2 लाइट सिलेक्ट हो गया बट दोनों लाइट अलग अलग सिग्नल जनरेट करते हैं। और मतलब प्लस, अभी 3 लाइट सिलेक्ट करना है, तो 5C3 इंटू, नाउ दीज 3 लाइट्स कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल वेज, और 5C4
तो 4 फैक्टोरियल वेज, और 5C 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सो इधर तो 1 फैक्टोरियल होगा क्योंकि एक ही लाइट है। सो ये हो जाएगा 5 प्लस, नाउ 5C2 क्या होता है 10 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 प्लस 5C3 वो भी होता है 10, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 5C4 ये कितना हो गया 5, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 एंड 5C5 मतलब 1, 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो ये क्या हो गया 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120। ओके, सो ये हो गया 5 प्लस 80 प्लस 240, करेक्ट। सो ये कितना हो गया 325 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। 325 है आंसर, यस 325 इज अवर ऑप्शन बी। अभी इधर मैंने 1 लिखा है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 5C1 मतलब एक ही लाइट को ऑन होना है ना, तो 5 तरीका है, या तो रेड लाइट ऑन होगा, या तो ब्लू लाइट, या तो ग्रीन लाइट, या तो ऑरेंज लाइट, या तो ब्लैक लाइट, करेक्ट। ब्लैक लाइट जैसा नहीं है, बट अभी इधर मेरे पास कलर नहीं है तो मैंने ले लिया है। नाउ 2 लाइट, अभी सेकंड क्या है 2 लाइट। किसी किसी को डाउट होगा कि बाजू में 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा है, तो सबसे पहले 5C2, तो मैं 5 में से 2 लाइट पहले सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो कितना वे है मेरे को 2 लाइट सिलेक्ट करने के लिए, तो 5C2 से मेरे को नंबर ऑफ वेज मिल जाएगा। 5C2 मतलब 10 है ना, 10 है तो चलो ये एक मैं एक्सपांड करके दिया। 10 मतलब क्या, या तो मेरे पास रेड एंड ब्लू लाइट सिलेक्ट हो गया, या तो मेरे पास रेड एंड ग्रीन सिलेक्ट हो गया, या तो मेरे पास रेड एंड ऑरेंज, या तो रेड एंड ब्लैक। ऐसा भी हो सकता है ब्लू एंड ग्रीन सिलेक्ट हो, या तो ब्लू एंड ऑरेंज सिलेक्ट हो, या तो ब्लू एंड ब्लैक सिलेक्ट हो। ये ब्लैक कर दो, रेड इधर भी ब्लैक, BL मतलब ब्लैक, ठीक है। ऐसा हो सकता है ग्रीन एंड ऑरेंज सिलेक्ट हुआ हो, ग्रीन एंड ब्लैक सिलेक्ट हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऑरेंज एंड ब्लैक सिलेक्ट हुआ हो, ठीक है। तो ये 5C2 मतलब 10 से मेरे को टोटल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कॉम्बिनेशन मिल गया। इंटू 2 क्यों किया है, तो रेड एंड ब्लैक से 2 सिग्नल में जनरेट कर सकता हूँ, या तो रेड ब्लैक से अलग सिग्नल जनरेट होगा और ब्लैक रेड से भी अलग सिग्नल जनरेट होगा, करेक्ट। सिमिलरली हियर रेड ग्रीन, पहले रेड है फिर ग्रीन है, उसका मतलब अलग सिग्नल जनरेट होता है। एक फिर ग्रीन है और रेड है, उसका भी एक अलग सिग्नल जनरेट, तो हर एक का 2 पॉसिबिलिटी है। सो इसके लिए ये इंटू 2 किया है, समझा। अब इधर 3 फैक्टोरियल क्यों किया है, क्योंकि 3 सिग्नल जनरेट हुआ होगा, करेक्ट। उसका 6 पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1 1 2 2 3 3, करेक्ट। फिर 1 2 3 फिर 3, मतलब 1 2 3 या 1 3 2, वो 2 पॉसिबिलिटी हो गया। फिर 2 1 3 2 3 1, इसका 2 पॉसिबिलिटी हो गया। 3 1 2 एंड 3 2 1, इसका 2 पॉसिबिलिटी, टोटल 6 पॉसिबिलिटी, 3 फैक्टोरियल हो गया। तो ऐसा टोटल 325 सिग्नल्स वी कैन जनरेट। ओके, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of permutations that can be formed by arranging all the letters of the word 19 in which no two e's occur together। अच्छा, कोई भी ई साथ में नहीं चाहिए, ठीक है। तो 19 में पहले लिख लेते हैं N I, फिर वापस N है, फिर E, फिर T, फिर वापस 2 E और फिर N। तो टोटल कितना है अपने पास। अच्छा, ई साथ में नहीं चाहिए, ठीक है, ई साथ में नहीं चाहिए, तो इधर हम लोग गैप मेथड यूज़ करेंगे। जब भी कोई साथ में नहीं होता है तो गैप जनरेट करना पड़ता है, तो गैप मेथड। तो ई को छोड़ दो, बाकी सब अल्फ़ाबेट्स को हम लोग कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, तो 3 N है ना, तो N N N I N T। पहले तो ये 5 को अरेंज करने का कितना पॉसिबिलिटी है, सो टोटल कितना अल्फ़ाबेट्स है 5। So to arrange N N N I N T, we have 5 factorial upon, now divide करना पड़ता है। Now these 3 N's are same, so 3 factorial ways, correct। तो 5 factorial upon 3 factorial way से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अभी इधर से बताओ कि कितना गैप जनरेट हुआ। एक तो ये गैप जनरेट हुआ, ये गैप जनरेट हुआ, ये गैप जनरेट हुआ, ये गैप जनरेट हुआ, ये गैप जनरेट हुआ और ये गैप जनरेट हुआ।
सो हाउ मेनी गैप्स आर जनरेटेड? सो टोटल कितना है? 3 6 गैप्स आर जनरेटेड। तो अपने पास तो 3 ही ई है, तो कोई भी 3 गैप फिल होगा। so, कौन सा 3 गैप फिल होगा? तो उसके लिए अपने को 3 गैप पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो सिलेक्शन ऑफ गैप्स, तो 6C3, तो कितना होगा? 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। गैप सिलेक्ट कर दिया। अभी कोई भी 3 गैप सपोज सिलेक्ट हो गया, 1 2 एंड 3, तो ये 3 गैप को फिल करने का कितना पॉसिबिलिटी है? तीनों सेम ही अल्फाबेट है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। एक ई को फर्स्ट गैप में डाल दो, दूसरा ई को सेकंड गैप में डाल दो, तीसरा ई को थर्ड गैप में डाल दो। तो टू फिल गैप्स वी हैव ओनली वन वे, या तो ऐसा बोल सकते हैं टोटल 3 अल्फाबेट्स है, तीनों का तीनों सेम है, सो 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 1। सो टोटल कितना वेज हो गया? एक तो हुआ 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1। ठीक है, सो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है क्या अपने पास? तो ऑप्शन में तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दिख रहा है। देन अच्छा, ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6p3, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल। इतना वेज है, ये मेरे को दिख रहा है, ये ऑप्शन बी, आई मीन सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोहली, अच्छा, आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर, देन द रैंक ऑफ द वर्ड कोहली इज। अच्छा, मतलब अपने पास 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ऑल 5 अल्फ़ाबेट्स आर डिफरेंट। 5 अल्फ़ाबेट्स, ऑल 5 अल्फ़ाबेट्स आर डिफरेंट, दैट इज KOHLI। ठीक है, इसका डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा? इसका डिक्शनरी ऑर्डर होगा, पहले क्या आता है? ABCDEFGH आता है, फिर I आता है, फिर JKL, K आता है, फिर L एंड फिर HIJKLMNO। ठीक है, HIKLO, ये होता है डिक्शनरी ऑर्डर। ओके, सो यूजिंग दीज 5 अल्फ़ाबेट्स, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी जनरेटेड? टोटल वर्ड्स इज 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 टोटल वर्ड्स कैन बी जनरेटेड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक 120 का स्टैक बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। क्यों 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ? क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर में सिंस ऑल 5 अल्फ़ाबेट्स आर डिफरेंट, तो पहले डिक्शनरी ऑर्डर में H आता है। ठीक है, तो इधर से H से चालू होता हुआ वर्ड्स होगा, फिर I से चालू होता हुआ वर्ड्स होगा, फिर K से, फिर L से एंड फिर O से। टोटल 120 वर्ड्स है, करेक्ट। तो पहला 1 से लेके 24 वर्ड्स होगा, फिर 25 से लेके 48 वर्ड्स होगा, फिर 49 से लेके 72 वर्ड्स होगा, फिर 73 से 100, इधर 120 आ जाएगा। ठीक है, अपने को कोहली का रैंक चाहिए, मतलब अपने को ये बॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ये बॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किस में? ये बॉक्स में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि कोहली के से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी एक ये बॉक्स को हम लोग एक्सपांड करते हैं। ठीक है, तो अगर ये बॉक्स को एक्सपांड करेंगे तो ये बॉक्स में टोटल, चलो इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो बॉक्स है ना, वो उसमें हर एक वर्ड्स का फर्स्ट लेटर तो K फिक्स ही है। ठीक है, तो K तो गया। अभी K से चालू होते हुए वर्ड्स में भी सबसे पहला वर्ड KH वाला आएगा, फिर आएगा KI वाला, फिर आएगा KL, फिर KO। अभी ये स्टैक में ये जो बॉक्स है उसमें 49 से लेके 72, मतलब 24 वर्ड्स है। 24 वर्ड्स है, मतलब इसमें 49 से चालू होता होगा। ठीक है, तो एक एक बॉक्स में, ये जो सेकंड कॉलम बना है उसमें एक एक बॉक्स में टोटल कितना वर्ड्स होगा? 6 वर्ड्स होगा। तो 49, 50, 51, 52, 53, 54।
ठीक है, 54 होगा। फिर इधर 55 से कितना होगा 60, इधर क्या होगा 61 से कितना होगा इधर 66, और इधर 67 से कितना होगा 67, 68, 69, 70, 71, 72, ठीक है, ये हो गया 72। अभी अपने को किस में इंटरेस्ट है, कोहली में, मतलब अपने को के और के के बाद ओ आना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट है। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्टैक को भी जरा और ओपन कर देता हूँ। अभी ये जो मैंने स्टैक ओपन किया है उसमें 3 बॉक्स दिख रहा है, वो तीनों के तीनों में हर एक वर्ड का स्टार्टिंग का वर्ड के ओ ही होगा, ठीक है। तो इसमें अभी ओ भी गया, अभी इसमें स्टार्टिंग किधर से हो रहा है 67 से, ठीक है, फिर 68, 69, 70, 71 एंड 72, तो के ओ गया। अभी इसमें भी पहला जो है वो के ओ के बाद एच से स्टार्ट होगा, फिर आई से स्टार्ट होगा और फिर एल से स्टार्ट होगा। अपने को के ओ एच में इंटरेस्ट है, मतलब अपने को ये बॉक्स और ये बॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बॉक्स में इंटरेस्ट है। इसमें दोनों वर्ड जो है के ओ एच से स्टार्ट होता है, तो ये नंबर है 67 और ये नंबर है 68, ठीक है। अभी के ओ एच तो फिक्स हो गया, अपने को के ओ एच के बाद एल चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर के ओ एच के बाद आई वाला पहला स्टार्ट होगा वर्ड और फिर एल आएगा, फिर इधर एल और फिर इधर आई आएगा। अपने को किस में इंटरेस्ट है, कोहली में इंटरेस्ट है, मतलब कोहली का रैंक कितना होना चाहिए उसका, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर द रैंक ऑफ द वर्ड कोहली विल बी 68। 68 इधर दिया है, यस, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।